Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 10th Science NCERT book. The name of the chapter is Acids, Bases and Salts. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the word acids, what is the meaning of the word bases. Acids are those substances which are sour in its taste, whereas bases are those substances which are bitter in its taste. Okay, we have also discussed about that how the acids and bases could be tested. It is being tested with the help of litmus paper, or we can test the solution with the help of whether the given substance is acids or bases. It could be tested with the help of the litmus solution. So litmus is the indicator. So we talked about indicator as well. So indicator means it is a substance which tells us that whether it is having the property of acids or it is having the property of bases. Okay, so it indicates, it gives us information. We saw that indicators are of two types, it is of three types especially. Okay, first is the natural indicator, which is like litmus solution is there, turmeric paper is there. Turmeric is there, I must not say it is a paper, it is transformed in the form of the paper, but turmeric itself is an indicator. We can have the indicators like red cabbage extract, China rose extract. Okay, so these were the natural indicators. Then we talked about the synthetic indicators. Synthetic indicators are those which are prepared in the laboratories, or they are being made by the human beings. Okay, for example, phenolphthalein, methyl orange. So these are the indicators. Then after that we discussed about one special type of indicator, that is one different type of indicator, which is the olfactory indicator, which means that it depends upon the change in the smell of the different components, like different foodstuffs like onion, garlic, it could be. Okay, then clove oil, vanilla essence, all these are the examples of olfactory indicators which are going to change their smell when they are going to react with the acids and bases. Then finally we were discussing about the chemical properties of acids and bases. So we'll continue with this, that is the chemical properties of acids and bases. So in this we discuss the first property, which tells us that whenever the metals are reacting with acids, it forms metal salt and hydrogen gas is released. Now I also told you how to test the presence and the absence of hydrogen. It was done with the help of pop sound test. Okay? It was done with the help of pop sound test. Similarly, we saw that metals are going to react with bases. Then also it forms metal salt plus hydrogen gas was released. Okay, and what is the test for? For finding out whether the given gas is hydrogen or not. So we can find out that the given gas is hydrogen by using the pop sound test. Okay, so with this, the first activity, the first chemical property was complete. Then after that we discussed about the next, we'll discuss about the next chemical property, that is how metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with an acid. Okay, now we'll discuss the second property, which tells us another chemical reaction, that is how metal carbonates, reaction of metal carbonates, and metals with acids and bases. ठीक है, कैसे ये मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स एंड बेसिस से? विल डू दिस सेकंड प्रॉपर्टी. Okay, now we'll discuss one activity which is being given over here, that is activity number 2.5. We have to take two test tubes in which we will label it as A and B. We'll take
some amount of sodium carbonate in it. ठीक है, then we'll add sodium hydrogen carbonate. We'll take sodium hydrogen carbonate in one test tube, and in another test tube we'll take sodium hydrogen carbonate. ठीक है, then we'll add dilute hydrochloric acid in both the test tubes. We have to observe the gas which is coming out from the test tube. ठीक है, so what are you going to take? We'll take 2 test tubes. Okay, we'll take 2 test tubes. In this we'll take sodium carbonate, or in another test tube we can take sodium hydrogen carbonate. So we'll take sodium carbonate, we can take sodium hydrogen carbonate. Okay, now this sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate is going to react with the acids. We'll put some amount of dilute hydrochloric acid in it. So what we have done, we have taken NaCO3, sodium carbonate. Okay, sodium bicarbonate we have taken, sodium carbonate we have taken, Na2CO3. Then we will put some hydrochloric acid in it. And in the second test tube, this is test tube number A. Then in the second test tube, what we have done, in test tube number B, we will be adding sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. ठीक है, NaHCO3 के साथ भी हमने same reaction किया, HCl add कर दिया. Now we'll see the result. So what results would be obtained after this chemical reaction? We will see that in the test tube which was having sodium bicarbonate or sodium carbonate, it was forming a metal salt. क्या बना? NaCl plus, और क्या रिलीज होगा यहाँ से? Water and carbon dioxide. ठीक है? Similarly, in the last reaction also we can see that here carbon dioxide is also released. ठीक है, carbon dioxide is also released. Fine. Now in the next part we can see that this NaHCO3 also will be combining with HCl to form metal salts, that is NaCl plus water plus carbon dioxide gas is released. So this is a particular reaction which is common in, what is so common in both of them? The common thing which is being produced in both of these reactions is this product. The product which is NaCl, that is sodium chloride, is a common product which is obtained when it is reacting with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate. ठीक है, अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं. कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, दे हैव सोडियम 2 यहाँ पर 1 सोडियम है, तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं. Then chlorine also becomes 2. You can write down 2 over here. Hydrogen, how much? Hydrogen is 2 hydrogen. Oxygen is 1 plus 2, 3 hydrogens are there. 3 oxygens are there. तो 3 oxygen इधर भी है. एक कार्बन है. Yes, एक कार्बन is 1 carbon is present with CO2. So this is completely balanced reaction. ठीक है, 2 HCl plus 2 NaCl. अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaCl के साथ HCl के साथ रिएक्शन देखेंगे. आई थिंक यू कैन सी दैट ओनली 1 सोडियम इज हियर ऑन द लेफ्ट साइड. ऑन द राइट साइड वी हैव अनदर सोडियम, ओनली 1 सोडियम. देन हाइड्रोजन इज 1 2. दिस इज 2 हाइड्रोजन. एंड ऑक्सीजन इज 3. हियर ऑक्सीजन इज 2 plus 1 3 ऑक्सीजन आ गए. ओके, ठीक है. क्लोरीन कितना है? 1 है, यानी पूरा बैलेंस्ड है. यहाँ पे हमें किसी भी नंबर का यूज़ नहीं करना है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ a balanced chemical equation. And also we can see here in this chapter we are dealing only with the acids and bases, so we will be studying about the acidic property, the basic property, and what results we are getting after once the metal carbonate or metal hydrogen carbonates are reacting with
द एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स लिया, यहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का मतलब है सोडियम और कार्बोनेट देखो जुड़ा हुआ है, तो ये दिस बिकम्स मेटल कार्बोनेट। दिस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फाइन, हियर ऑल्सो वी विल हैव सोडियम हाइड्रोजन carbonate which forms HCl to give rise to NaCl plus H2O plus carbon dioxide. So then in this next reaction, in this next test tube, इसका क्या हमें करना है? इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है जो यहाँ पर आ रहा है, इसमें क्या आपने भरा, आपने सोडियम कार्बोनेट भरा, दूसरे एक और टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। अब सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, इट इज गोइंग टू रिलीज अ गैस एंड हियर वी विल ऐड सम lime water. Okay, so in this test tube we will have lime water in it, that is calcium hydroxide solution. This has calcium hydroxide solution. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब भी यहाँ रिएक्शन होगा तो आपको दिखेगा कि एक प्रोडक्ट बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी हम लोग थोड़ी देर में रिएक्शन के साथ देखते हैं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली जब यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड जैसे ही रिएक्ट करेगा NaCl फॉर्म करेगा जो यहाँ पर होगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा जो इसी टेस्ट ट्यूब में होगा। और एक चीज़ जो है दैट इज द लास्ट प्रोडक्ट, दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड। So this carbon dioxide will be evolving from this side and it goes inside the test tube and it moves inside this lime water. ठीक है, इट मूव्स इनसाइड दिस लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर में जब भी मिक्स हो जाएगा तो इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, इट फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ, लेट अस सी दैट रिएक्शन आल्सो नाउ। सो लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, okay, CaOH twice plus carbon dioxide, this forms CaCO3। ठीक है, this forms CaCO3 plus water, H2O, water, and this is the white precipitate. So this forms a white precipitate which could be easily seen while whenever we will see that the calcium hydroxide is reacting with carbon dioxide to form calcium carbonate plus water। ठीक है, so this is about the complete reactions which we are seeing। अब अगर आप सोचो कि अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाएगी इस वाटर, इस लाइम वाटर में, दिस इज लाइम वाटर, ओके, दिस इज लाइम वाटर। अब जब हम इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब क्या होगा, सो वी हैव CaCO3। अब इस CaCO3 के साथ जो वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल गया है पहले ही, CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते ही हमें क्या बन जाएगा, CaHCO3 बन जाएगा, CaHCO3 twice, this would be formed, okay, so this would be so we can see that it forms CaHCO3 which is again water soluble, this is soluble in water, this is soluble in water। अब ये हमें फिर से कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। So this was the complete reaction which is taking place in this reaction in this test tube which is going on. In this test tube what is exactly happening,
Here we will take one metal salt or a metal hydrogen carbonate or metal hydrogen carbonate. Once we are using this metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then what happens? This is going to give rise to the other types of products. These other types of products could be helpful while this is going to form a new type of a substance. Here in this test tube we have taken one metal salt, that is metal carbonate or metal hydrogen carbonate. ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा. सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, उसमें एसिड डाल दिया. जैसे ही हमने एसिड डाला हमने कुछ रिएक्शन देखा. क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन वॉज इट फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज मेटल salt was being formed. This was in the form of NaCl. ठीक है, NaCl बन गया. अब ये जो NaCl है इसके साथ इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज हो रहा है. ओके, सो whenever it is releasing, this carbon dioxide is being released. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे हम? इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम टेस्ट करेंगे whether the given out gas is a कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर ले लिया. लाइम वाटर केमिकली क्या होता है? सोडियम दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें टेस्ट ट्यूब में दिखता है. अब टेस्ट ट्यूब में जब हमें ये सोडियम वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट दिखेगा तो इट फॉर्म्स इट इज गोइंग टू बी डिजॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन. तो ये बन जाता है वाटर के साथ में हमें सॉल्युबिलिटी दिखाई पड़ती है. ओके, देन फाइनली वी विल सी दैट अब एक और सिचुएशन बनी. क्या सिचुएशन है? सिचुएशन इज दैट इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन दिस वाइट प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म्ड विद वाटर. अब अगर इसमें हम और प्रेसिपिटेट, इसमें अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में ही, पहले आपने लाइम वाटर में कार्बोनेट पास ये कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या बना? वाइट प्रेसिपिटेट बना. अब अगर आप कंटिन्यूसली ब्लो करते रहेंगे एयर या और ज़्यादा हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है? ये जो कार्बोनेट है ये डिजॉल्व हो जाएगा. कैसे डिजॉल्व हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है. अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. अब सॉल्युबल होने से क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है. ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. Children, this was the chemical reaction which is taking place in the test tube, and what else is going to be happen? Let us see that what is given in your book. Limestone, chalk and marble are the three different forms of calcium carbonate. ठीक है, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. And yes, before moving to another part, I must say that the reaction which we are seeing here, all these reactions you can see easily in the while doing the test. Then कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा लाइम वाटर में जो पास करने का एक हमने सिचुएशन बताया है, इस सिचुएशन का एक टेस्ट है. इस टेस्ट को हम बोलते हैं इट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, दिस इज द श्योर टेस्ट फॉर टेस्टिंग वेदर द गिवन सॉल्यूशन whether the given gas which is being evolved is carbon dioxide. ठीक है, तो लाइम वाटर टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट. लाइम वाटर का मतलब लेमन जूस नहीं है. लेमन जूस या लेमन वाटर नहीं होता. लाइम का मतलब है चूने का पानी होता है. कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड आपने सुना है. कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, उसमें हम वाटर डाल देंगे. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन which reacts where this calcium oxide is going to react with water to form another product which is known as calcium hydroxide. This forms calcium
हाइड्रोक्साइड. दिस फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब साथ में इसमें क्या रिलीज होता है? यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज लाइम वाटर. ठीक है, ओके फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ये क्या लाइम वाटर लेकर के हमें रिएक्शन कराना है. क्या रिएक्शन कराना है? CaOH twice plus carbon dioxide. Whenever we will add carbon dioxide to this lime water, this forms a product called calcium carbonate, a milky white precipitate. Milky solution is obtained. ठीक है, तो मिल्की सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसको एग्जैक्टली बोला जाता है. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो दिस लाइम वाटर इज टर्निंग इनटू मिल्की सॉल्यूशन. कलर ऐसा हो जाता है, ये नहीं कि ये मिल्क बन गया. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट. सो लाइम वाटर इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर. एक्चुअली दिस इज कलरलेस. ये कलरलेस होता है. दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन. And once the colorless solution is there, this is going to form a new type of the product, and this product is a milky solution of calcium carbonate. बाद में ये precipitate के फॉर्म में आपको दिख जाता है. ठीक है, अब वाटर के साथ फॉर्म हो रहा है. अब क्या होगा अगर आप इस लाइम वाटर में ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे? तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, फिर यही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. CaCO3 plus CO2, which gives rise to another product which is known as calcium hydrogen carbonate. Calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, CaCO3 का ट्वाइस बन जाता है. CaOH ट्वाइस का नहीं, CaHCO3 का CaHCO3 का ट्वाइस बन जाता है. ठीक है, 2 टाइम्स. अब ये क्या है? ये सॉल्युबल फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है. दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज कलरलेस. ठीक है, ये कलरलेस होता है. अब ये अगर कलरलेस है तो इसका मतलब है कि क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे? ये वाटर सॉल्युबल है, ये लाइम वाटर में सॉल्युबल है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ the chemical reaction. And yes, we were discussing about that limestone, chalk and marble are the different forms of calcium carbonate. All metals, metal carbonate and hydrogen carbonate reacts with acid to give corresponding salt and carbon dioxide gas and water. ठीक है, तो इसका जनरल रिएक्शन क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करेगा. आपने देख लिया यहाँ पर सारा रिएक्शन. इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जनरल रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? जनरल रिएक्शन को लिखने के लिए सेम वही कंडीशन लिखनी होगी जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन के साथ किया था. क्या? मेटल कार्बोनेट, दैट इज मेटल कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे एसिड का. इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर plus carbon dioxide. Okay, similarly if metal hydrogen carbonate is there,
इसमें भी, ठीक है। क्या देखा, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते ही सॉल्ट बना लेगा। सॉल्ट भी कैसा स्पेसिफाइड होता है, मेटल सॉल्ट। वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड का हमें टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करेंगे आप, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये रिएक्शन आपका हमेशा ये काम आएगा। आपको ये याद रखना होगा कि क्या टेस्ट हमें सीखे, भी 2 टेस्ट सीखे, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो चिल्ड्रन, दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट विद द एसिड्स, ओके, विच फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हमने एसिड्स के बारे में देखा, बेसिस जनरली डोंट रिएक्ट विद द, आपको पहले बता दिया था मैंने, मेटल के साथ बेसिस के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देते हैं। सिर्फ जिंक ही ऐसा मेटल था जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी चिल्ड्रन। नाउ वी हैव टू सी अबाउट, एंड यस, देखो डिफरेंट फॉर्म्स में एक सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपका काम आता है जो आपने पढ़ा अभी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, लाइम वाटर कैसे बनेगा। लाइम वाटर बना कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, लाइमस्टोन, चॉक या मार्बल, ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके फॉर्म्स हैं ये। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं उस टेस्ट ट्यूब को, तो उसमें एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा एक केमिकल बन जाता है। उस केमिकल को बोलते हैं क्या, उस केमिकल का नाम होता है लाइम वाटर, ठीक है। एंड केमिकली इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब भी हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या हो सकता है, इसका एक डिफरेंट फॉर्म है। क्या डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का, वही मैंने आपको बताई हूँ अभी कि इट इज़ लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन, चॉक या मार्बल में से ये सब फॉर्म्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको रिएक्शन में दिखाई दिया, और बाकी आपको नेचर में दिखाई पड़ते हैं अलग अलग फॉर्म्स के साथ में, ओके। अब ये जो सॉल्ट एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जनरल रिएक्शन आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू you will not be able to understand what next is being given. So please remember all the tests so that you can easily give the answers for the question which is being asked in your examination. So we have learnt about 2 tests. One is hydrogen, which is going to be tested with the help of the पॉप साउंड टेस्ट। क्या करना है, बस अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है किसी भी टेस्ट ट्यूब में या किसी भी रिएक्शन में, तो उसी के ऊपर, उसी हाइड्रोजन गैस के ऊपर आपको क्या है, बर्निंग स्पिंटर लेकर के आना, एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू पॉप साउंड। पॉप साउंड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द व्हेन द पॉपकॉर्न्स आर बीइंग बेक्ड एंड दे आर गोइंग टू पॉप, एंड एक आवाज़ जो उसमें से आती है, दैट इज नोन एज पॉप साउंड, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, कैसे आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने में हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो इनिशियली कैसा होता है, बिल्कुल वाटर के जैसा होता है, ठीक है, पानी के जैसा होता है, सॉल्युबल हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब जब भी ये मेटल हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे लाइम वाटर के साथ, एक मिल्की सॉल्यूशन, पूरा का पूरा मिल्की सॉल्यूशन टर्न हो जाए, और इट टेक्स हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है, उसी में अगर हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब क्या होगा, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से एक कैल्शियम कार्बोनेट बना था, उसके बाद एक और रिएक्शन होगा जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वुड बी फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वुड बी फॉर्म्ड।
अभी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, बिल्कुल वाटर फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे जैसा हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, ठीक है. So this will give you the concept that whether the soluble substance is being formed, and this is a sure test of carbon dioxide. Okay children, so this was all about today's video. I will be meeting you all in the next class with some more ideas of the chemical properties of acids and bases. Till then you can read the book, you can find out the questions, you can solve them, and if you have any problem you will be answered in your online class. Okay, so that's all for today's video. I will be meeting you all in the next class.